Hello students, good evening. I hope you all are doing well. Today class is going to be a very important because we're discussing question answer from NCERT exercise. Students, today we will focus on exercise 1.1 and if possible then we also discuss questions from exercise 1.2 as they involve a key concept that we will explore in depth. So why you making a delay? Let's begin our class. तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि आज हम लोग आफ्टर रिगोरियस डिस्कशन विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रियल नंबर, so today we will consider the questions from the NCERT books for fundamental developing our concept. So let us begin our class. चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग NCERT से देखेंगे, उसका कोशिश करेंगे कि 2 एक्सरसाइजेस को हम लोग फिनिश कर दें. तो चलिए देखते हैं. हमने इसमें कुछ क्वेश्चन का पहले ही स्क्रीनशॉट ले रखा है, आप इसको देखें आपके पास में. आई होप सो यू ऑल हैव अ NCERT बुक आल्सो. सो हम लोग अब इसको देखते हैं 1 by 1. फर्स्ट क्वेश्चन आस्किंग use Euclid's division algorithm, and you may also say use Euclid's division algorithm to find HCF of, here is a 3 questions. So we are not going to discuss all 3 questions because all are a very similar way, just making the concept clear, taking any one among all 3 questions. So I just go to solve first question of this question. 135 and 225. What is doing in this question? Let me clear once again. We need to find the HCF with the help of Euclid's division algorithms or lemma. So let us see how to solve. Question number 1. Question number 1. And here number is given. In question number 1, number is given 135 and 225. Since numbers 135 and 225, we already discussed what is the Euclid's division algorithm or Euclid's division lemma. Since by Euclid's division lemma, and you may also say Euclid's division algorithm, the statement of Euclid's division algorithm stated that A equals to BQ plus R, where 0 is less or equal than R, but R is always be less than B. Here the 2 number is given 135 and 225. So can you guess which is greater? Definitely your answer will be 225 is greater than 135. So greater number is A and smaller number is B. A and B is what? A is a dividend while B is a divisor and Q is a quotient and R is remainder. So applying the numbers in this statement, in place of A we must write 225. A की जगह पर 225 हम लिखें क्योंकि 225 ही सबसे बड़ा नंबर है
और बी के जगह पे क्या लिखना चाहिए? 135। अब देखना है ये है कि Q और R के जगह पे क्या होगा। तो Q एंड R के जगह पे जब तक हम लोग पता करेंगे उससे पहले हमें रफ करना होगा। तो कैसे रफ करना है? 225 को आप 135 से डिवाइड करेंगे। आई थिंक ये जो है ना एक ही बार में डिवाइड होगा, 2 बार में तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 here 12 minus 3 that means 90 आ रहा है। तो हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं बेटा आप लोग के साथ में। हमने यहाँ पे ये क्या है? कोसेंट है एंड दिस वन इज रिमाइंडर। तो कोसेंट की जगह पे हमें लिखना रहेगा 1 एंड प्लस रिमाइंडर 0। पहले से हम लोग जान रहे हैं कि अंडर द प्रोसेस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन ऑल द स्टेप्स द पोजीशन ऑफ नंबर विल चेंज, यानी नंबर अपना पोजीशन चेंज करता है हर अगले स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में अप्लाइज दैट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और डिविडेंड यानी कि 225 के जगह पे अब आ रहा है, क्या आ रहा है? 135 आने वाली है। तो यहाँ पे लिख देंगे 135 और इसके जगह पे 135 के जगह पे कौन सी नंबर आ जाएगी? रिमाइंडर आ जाएगी। तो रिमाइंडर आ गया 90। ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे कोसेंट क्या होगा बताइए? कोसेंट और रिमाइंडर क्या होगा? तो लेट अस सी अगेन। 90 से 135 हमें डिवाइड करने रहेंगे। Again it is divisible in 1 times. So you will get here 45 as a remainder. तो यहाँ पे कोसेंट क्या आया बेटा? यहाँ पे कोसेंट आया 1 और रिमाइंडर बन गया 45. And in the next coming steps, after changing the position of number, it will be 90 और यहाँ पे 45. वेरी गुड। अब 45 से 90 अगर आप डिवाइड करोगे सर्टेनली ये 2 टाइम्स में पूरा का पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, यानी 0 आ जा रहा है यहाँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस इंटू 2 एंड प्लस 0। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस स्टेप्स में रिमाइंडर 0 हो जाते हैं तो जो डिवाइजर होते हैं दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ दैट 2 नंबर्स। तो वही डिवाइजर एचसीएफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 is equals to 45. This be the answer of that question. तो इस तरह से हमने देखा कि आपका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एंड बाकी का 2 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd एंड 3rd, आपको ट्राई योर सेल्फ खुद करना है, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। इवन हम लोग इससे हार्ड क्वेश्चन देख चुके हैं, काफ़ी पिक्यूलियस क्वेश्चन देखे हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन देखे। आज हम लोग एनसीईआरटी से भी अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने देखना है। इसमें क्या पूछता है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो
तो जब तक इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके नहीं डिस्कस करेंगे आपके साथ, तब तक ये अच्छा से समझ में आएगा ही नहीं, चाहे मर्जी जितना भी हम स्टेटमेंट को रीड करके आपको बता दें। फिलहाल आपको ये समझना है कि सेकंड नंबर में जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं, ऑड नंबर के किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द ऑड इंटीजर? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2. द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज सेड टू बी अ ऑड इंटीजर और ऑड नंबर। तो जो भी ऑड इंटीजर्स होंगे दैट विल डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में होंगे? इधर इन फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, इसी 3 फॉर्म में ही होंगे, दूसरे कोई फॉर्म में नहीं होंगे। सो लेट मी शो इट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। वेरी गुड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली कौन सा फॉर्म था, किस फॉर्म में हमें लाना था, इसको हम लोग एक बार कहीं पर लिख के समझ लेते हैं। 6q + 1 में आएगा कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, या फिर 6q + 3 में आएगा, या फिर 6q + 5 में ही आएगा। इसके अलावा कहीं कोई दूसरे फॉर्म में नहीं है। और q क्या है? व्हाट इज द q? q यहाँ पे कोसेंट है, सब में सेम कोसेंट है, और डिवाइजर सबका क्या है? 6 है। a की जगह पे है aq + r, तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है? 6 6 एंड हियर इज 6। तो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। इसको तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को तो काफ़ी एक्सपर्ट हैंड की ज़रूरत होती है, इसमें हमें जो स्टेटमेंट होता है काफ़ी संभल के लिखना पड़ता है। देखिए, सिंस बाई Euclid's division lemma, Euclid's division lemma, and it states that A is equals to BQ + R, कोमा यहाँ देना है where 0 less or equal than R and R is always be less than B। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंस यहाँ पर ए क्या है? व्हाट इज ए? तो ए है 6। कहाँ से हमने 6 लिख दिया? आप आसानी से इसको कैच कर सकते हैं। 6 हमने लिखा, देखिए यहाँ पे ये ए है, ए है, ए है, यही ए 6 है। तो फिर बी क्या है? What is B is here? B क्या? तो B तो क्यूब है, तो B क्यूब है। नो, देयर इज अ लिटिल मेक मिस्टेक्स। यहाँ पे A क्या है? A पता करना है, A जो है पता करना है। यहाँ पे B है 6 एंड R, आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ पे A मिस्टेकली लिखा गया, ये B है, Q है +1, राइट। तो हेयर इज B इज गिवन। B क्या दिया हुआ है बताइए? B है यहाँ पर 6। इफ B इज 6, अब यहाँ पे देखो, इस स्टेप में देखो ध्यान से, B 6 है, तो 0 लेस और इक्वल देन R, बट R इज लेस देन 6। तो देयरफॉर R का हमें लिमिटेशन बताना होगा। R का लिमिटेशन क्या हो सकता है इसमें? R जो है वो 6 से छोटा है, लेकिन R क्या है? 0 से बड़ा या बराबर है। तो ये एक वैल्यू R का रिमाइंडर का होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है,
इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो जब हमें डिवाइजर मिल गया तो आर का यहाँ पे क्या किए हम लोग, स्टेटस बता दिए। एंड विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ बी एंड आर वी ट्राई टू फाइंड वेदर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स और नॉट। तो हमें ये दोनों वैल्यू जो पुट करेंगे तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्या ये सपोर्ट करते, क्या ये वही चीज़ स्टेटमेंट को प्रूफ करता है या नहीं करता है। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइज a इज इक्वल्स टू 6 एंड q तो q ही रहेगा एंड प्लस एक वैल्यू r का क्या रखोगे, 0 रखना है तो 0। तो यहां पे क्या आया 6q आया। अब इसको काफी अच्छा से समझना है, बहुत ही मजेदार है और आप आसानी से समझ सकते हैं। q कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। तो जरा आप सोचिए कि कैसा भी ऑड लेंगे आप, जैसे मान लीजिए ऑड का हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। और अगर हम इसको इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लो 6 से ही कर दो तो क्या आएगा, 6 3 18। तो ये तो क्या हो गया, इवन नंबर बन गया ना, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो सकता है। अगेन अगर 5 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 30। 30 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, दैट इज इट बिकम्स अ इवन नंबर। अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 जा 42, 42 भी इवन नंबर है। 9 को 6 से करोगे तो 54, दिस इज आल्सो इवन। ऐसे जितना भी करोगे सब के सब इवन बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे ये हुआ कि जितना भी ऑड नंबर है, जितना भी आप देख रहे हो ऑड, अगर ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन ऑलवेज बी इवन। इवन ई से रिप्रेजेंट किया था, इवन नंबर। यहां तक बात समझ में आया? तो क्यों कोई सा भी नंबर होगा, ऑड होगा या इवन होगा, लेकिन जब इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बना, इवन ही बना। आया समझ में? इसको लिखना रहेगा। और ये जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, नोट नीड टू, आप चाहे तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो तो सी अगेन, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला केस में 0 इज नीदर ऑड नॉर इवन। 0 ना तो इवन में आता है ना ऑड में आता है, इट इज अ न्यूट्रल नंबर। 0 इज न्यूट्रल नंबर, ओके। सो अब हम लोग देखते हैं 1 से। 1 जब हम लोग रखेंगे तो 1 रखने पे क्या होता है, 1 क्या है, इवन है या ऑड है? तो 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इवन ऑड ही हुआ। तो अप्लाइज, यहां देखिए अप्लाई कर रहे हैं, when putting r is equals to 1, तब ये जो नंबर बन रहा है ये क्या बन रहा है, 6q plus 1 बन जा रहा है। तो ये क्या हुआ, अब एक चीज देखिए, केवल 6q रहता तो ये तो इवन हो जाता, क्योंकि q कोई भी इंटीजर है, चाहे ओड हो चाहे इवन हो। अगर ये आप मल्टीप्लाई करोगे इवन से तो इवन ही बन जाएगा। और कोई भी इवन नंबर में 1 ऐड कर देने से क्या बन जाता है, ऑड। कोई भी इवन नंबर में 1 अगर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, वर्ड ऑड बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10,
12 एंड सो ऑन, इस तरह से होते जाएगा। अब सब में अगर 1 ऐड करके देखो तो क्या बन जा रहा है, ऑड बन जा रहा है। 3 इज अ ऑड नंबर बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 4 + 1 क्या होगा, ये भी 5 ऑड बन जाएगा। 6 + 1 7, 7 इज अ ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। 8 + 1 दैट इज 9, 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2 सो इट इज ऑड नंबर। तो हर केस में जिसमें 1 ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप देखेंगे कि ऐसा करने पे एक काम तो हमारा होता हुआ दिख रहा है, और वो कौन सा है अभी अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये क्या होगा बताइए, यहां पे लिखिए ऑड। ठीक है, तो ऑड में जब बना तो ये ऑड किस फॉर्म को बिलोंग्स किया, 6³ + 1 को किया ना किया। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेल। सबको समझ में आया। ऑड जब भी नंबर रहेगा वो किस फॉर्म में आया, 6³ + 1 में आया, या हो सकता है 6³ + 3 में आए, या हो सकता है 6³ + 5 में आए। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो फॉर्म में होगा वो इवन बन जाएगा। इसी को हम लोग को देखना है, ऐसे ही हम लोग को प्रूव करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या प्रूव किया हुआ है बताइए। एक पार्ट तो हम लोग फाइंड कर लिए कि हाँ ठीक है, पहला जो टेस्ट हुआ ऑड बना तो इसी फॉर्म में बना। अब अगला हम लोग को करना है कि व्हेन, अब क्या पुट करना है, व्हेन 0 रख चुके हैं, 1 रख चुके हैं, अब 2 रख के देखते हैं। व्हेन r = 2, तो अब क्या होगा, r को 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए r को 2 रखते हो यानी रिमाइंडर 2 रखते हो, तब उस केस में यहाँ अप्लाइज का साइन देना होगा। अप्लाइज दैट a = 6q और r के प्लेस में क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब एक चीज देखो बेटा, ये इवन है और ए भी इवन है, सम ऑफ इवन इज इवन, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया इवन। यानी इवन नंबर जो ये तीनों दिया हुआ था इसमें से किसी में भी नहीं है। इवन जब आ रहा है तो इसमें से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। व्हेन r = 3, r अब हम ऑड नंबर ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, a = 6q + 3। अब यहां देखने वाली बात है कि ये दोनों मिलकर के इवन है और ये क्या है, ऑड है। तो अगर कोई सा भी आप इवन लेते हो, सपोज दैट आप ले लेते हो 10 इवन है, राइट, और एक ऑड इसमें 3 ऐड कर दो, तो क्या मिला 13। 13 इज नेवर बी डिविजिबल बाई 2, सो ये ऑड ही हो गया। अगर हम एक 12 ले लेते हैं और इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो क्या है 15। 15 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सो इट इज ऑड नंबर। तो जब ऑड लिए यहां पर तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑड बन गया। और किस फॉर्म को बिलोंग्स किया, तो यहां पे आप देखिए इस फॉर्म को बिलोंग्स कर दिया, 6q + 3 को बिलोंग्स कर दिया। 2 more steps is required। अभी हम लोग देखेंगे when putting the value of r = 4। 4 क्या है, इवन है। तो जब हम इवन रखते हैं तो फिर इक्वेशन क्या बन जाता है, देख लीजिए, a = 6q + 4, इवन प्लस इवन, तो क्या बनेगा, इवन ही बन जाएगा। And one more steps is required। When putting the value of r = 5 and 5 is odd, then the equation becomes a = 6q + 5। अब आप देखो बेटा, ये इवन है और ये ओड है, तो इवन प्लस ओड ऑड। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द एबव डिस्कशन, क्या कंक्लूजन मिला कि जब रिमाइंडर ऑड था
तो पूरा का पूरा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर था वो या तो आपको 6q+1 के फॉर्म में आया, या फिर जब ऑड था तो 6q+3 के फॉर्म में आया, या फिर जब ऑड था तो 6q+5 के फॉर्म में था। तो ये क्या हो गया, अभी दिस प्रूफ आवर रिजल्ट, ये अपना रिजल्ट को प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। एंड नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कंसीडर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में करता है एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number? Maximum के केस में क्या फाइंड करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट के लिए एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी कर सकते हो। तो यहाँ तो मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है। और मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का? मीनिंग क्या है? लेट अस डिस्कस वन मोर टाइम्स द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहता है कि एक आर्मी बैंड है और आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स है। आर्मी बैंड में कितना मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। और उसके पीछे आर्मी कंटीजेंट है। कंटीजेंट मतलब सैनिक लोग हैं, ठीक है। तो आर्मी बैंड में जो बैंड बजाते हुए आगे बढ़ते हैं मार्च पास्ट में, और उसके पीछे सैनिक होते हैं जो परेड करते हैं, लेफ्ट राइट ऐसे करते चले जाते हैं। सबका अगर राइट हैंड सामने आ रहा तो सबका सामने आता है, लेफ्ट हैंड सामने आता है तो लेफ्ट हैंड आता है, राइट हैंड विथ लेफ्ट लेग सबका एक जैसा होता है, उसको बोलते हैं मार्च पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है बेटा? यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर है, तो यहाँ पे पहले तो नंबर क्या है, सिंस नंबर्स क्या है, जिस नंबर से मैक्सिमम कॉलम बनाना है वो नंबर क्या है, इसको और क्लियर लिख देता हूं। सिंस नंबर्स है, नंबर्स आर जो आपका बैंड लेके चल रहा है, बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, तो एक नंबर से 32, और उसके पीछे जो कंटीजेंट्स हैं उसमें कितने मेंबर्स हैं? 616। हाउ मेनी मेंबर्स? 616। तो हमें कॉलम बनाना है कि कितना कॉलम मैक्सिमम बन सकता है, हाउ मेनी कॉलम्स आर पॉसिबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आर पॉसिबल। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। सिंस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है मुझे बताइए। तो ये इसका स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू BQ प्लस R, कोमा वेयर 0 लेस और इक्वल देन R बट R इज लेस देन B। अब ये दोनों नंबर में क्या है इसको कहीं समझ लीजिए। 616 इज ग्रेटर देन 32, तो जो बड़ा होगा वो डिविडेंट होगा और जो छोटा होगा वो डिवाइजर, ये बी हो गया। इज दिस क्लियर? अब तो आप लोग एकदम एक्सपर्ट ही हो गए होंगे, आई होप सो। तो ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो 616 इक्वल्स टू 32 एंड व्हाट अबाउट द नंबर इन प्लेस ऑफ Q एंड R? तो फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड R वी नीड टू मेक द रफ वर्क। तो अब यहाँ पे रफ हम लोग कर रहे हैं। सो 32 डिवाइड 616 इन हाउ मेनी टाइम्स? तो देखना पड़ेगा कितना बार में कट रहा है।
तो 8 3 ज़ा 24, 9 3 ज़ा 27, 64, ये तो 1 बार में जा रहा है। 32 taking 1, 11 minus 2 9, 5 minus 3 2 and 6. I think 9 times 9 2 is 18, 9 3 is 27, 28. Yes, 9 times में जा रहा है। 9 2 is 18, carry 1 in hand, and 9 3 is 27 और 1 28। देखिए कैसे क्या होगा। 8 एंड यहाँ पे क्या आया, यहाँ कुछ नहीं आया, बस 8 बच रहा है। तो यहाँ पे आ गया आपका 19 और प्लस 8। सो द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखेंगे 32 और यहाँ लिख देंगे 8। तो 8 से 32 को डिवाइड करोगे तो इट इज डिविजिबल बाई 4 टाइम्स और रिमाइंडर यहाँ आ गया 0। तो 8 4 जा 32 और रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। नाउ प्रोसेस इज ओवर बिकॉज जस्ट वी गेट द रिमाइंडर 0। यहाँ रिमाइंडर 0 मिल चुका है। तो किसे रिमाइंडर मिला 0? जब डिवाइजर 8 था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सिंस HCF of 32 and 616 is equals to 8। तो अब इसको स्टेटमेंट में चाहो तो लिख दो या यहीं पे आंसर कर दो। इसको लिख दो therefore कंक्लूजन, इसको बोलते हैं कंक्लूजन स्टेटमेंट। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 8। दिस बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा तीसरा नंबर भी क्वेश्चन। अब काफी आपको आसान लग रहा होगा। ईडीएल काफी इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी एबल टू सॉल्व आवर डे टू डे लाइफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग आते हैं। एक बार लेट मी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट। अभी तक तो 3 हो चुका है, अब 4 में देखते हैं क्या कहता है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। अब इसमें कहता है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। इसमें बोलता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है और शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। उसमें ऑड था, इसमें पॉजिटिव है। एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म, या तो 3m होगा या 3m plus 1 होगा। ठीक है, अब लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी हमें देखना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर करेंगे या तो किस फॉर्म में होगा, 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m plus 1 के ही फॉर्म, यही दोनों फॉर्म में होगा। इसके अलावा कोई दूसरे फॉर्म में नहीं होगा। तो लेट अस सी, स्क्वायर करना है इसमें और किसके हेल्प से बनाना है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से बनाना है। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आप देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या कहते हैं, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर कोमा
वेयर इसको लिखना पड़ता है 0 लेस और इक्वल देन आर, बट आर इज ऑलवेज बी लेस देन बी। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे बी क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो यही बी है, यही बी है, और ये तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस b इज इक्वल्स टू 3, अगर b यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि 0 लेस और इक्वल देन r है, बट r अब b का वैल्यू 3 है, तो r क्या होगा? 3 से तो छोटा ही होगा ना। तो फिर क्या क्या हो सकता है? तो r का एक वैल्यू 0 हो सकता है, एक वैल्यू 1 हो सकता है, एक वैल्यू 2 हो सकता है, लेकिन 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 से छोटा है। तो यही तीनों वैल्यू हम लोग को पुट करके बनाना है, रिजल्ट प्रूफ करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तो अप्लाई कर दीजिए a इज इक्वल्स टू b क्या है? b 3 है और यहाँ पे क्यूब है, और प्लस r क्या है? तो 0 है। तो 0 ऐड करने पे क्या होता है? नथिंग विल बी चेंज, तो 3q ही है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे अप्लाई करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। a का स्क्वायर करोगे और इधर किसका स्क्वायर करना है? इधर तो 3q है, तो 3q का स्क्वायर करेंगे। चलिए, तो 3 3 जा 9 और ये q स्क्वायर है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप देखिए 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 3 जा 9 ही होगा और q स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात पे नोटिस कराना चाहता हूँ, और वो बात क्या है? ये 3q स्क्वायर क्या है? q क्या है? q तो कोई एक इंटीजर है, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है, एक इंटीजर है। लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वो पॉजिटिव कोई नंबर होगा, कोई ना कोई एक नंबर होगा। तो जब 3q स्क्वायर है, मान लो कि क्यूब जो यहाँ पे 5 है, तो क्या करोगे? 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो 75 क्या मिला? What do you understand by 75? तो 75 एक नंबर है, यानी कि ये भी एक इंटीजर है। बट वी डोंट से एग्जैक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। यहाँ पे q क्या है ये हम कह नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। लेकिन ये सब मिला के क्या होगा? सब मिला के एक इंटीजर ही होगा ना। तो उस इंटीजर को हम लोग सपोज कर लेंगे, क्या सपोज कर लेंगे बोलो? m सपोज कर लेंगे। उस इंटीजर क्या सपोज कर लेंगे? m। और यहाँ पे बताना भी होगा द स्टेटस ऑफ m, वेयर m जो है वो क्या है? 3q स्क्वायर है। तो आपने देखा कि जैसे ही हम लोग रिमाइंडर का वैल्यू 0 रखें और स्क्वायर किए, तो वो किस फॉर्म में मिला? 3m का मिला ना। तो इस फॉर्म को होल्ड किया कि नहीं किया? किया। अब अगला वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या ये भी करता है या नहीं करता। व्हेन व्हेन r इक्वल्स टू 1, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 0 पुट करके देख लिया, अब 1 पुट करके देखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या किस फॉर्म में आता है। तो अप्लाई कर दीजिए। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और स्क्वायरिंग बोथ साइड, a होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिख दो, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, a स्क्वायर, और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर किए वो इस फॉर्म में आ गया। इसको बॉक्स में डाल दीजिए और भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3q प्लस 1
होल स्क्वायर, राइट। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या हुआ बताइए। 2a तो आपका 3q है और b क्यू क्या है 1 है, तो 6q प्लस यानी 6q इंटू 1 यानी 6q ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंटू करोगे आप तो क्या मिलेगा बेटा आप लोग को बताइए, टेल मी। तो यहाँ मिल रहा है 6q, तो a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, और b यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ये दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है जी, तो क्या इस दोनों से कॉमन आ रहा है, हम इस दोनों से 3 ले सकते हैं कॉमन। क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, और q भी कॉमन है लेकिन q को लेने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू टेक q एज अ कॉमन फ्रॉम बोथ द प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1। फिर एक आर्गुमेंट हमको करना पड़ेगा, q तो कोई इंटीजर है, अगर यहाँ पर क्यूब का वैल्यू अगर हमें पता होता तो ये रखते, यहाँ रखते और सोल्व करते तो एक नंबर मिलता, तो लेट दैट नंबर विल बी व्हाट, तब उसी नंबर को हम लोग कह देंगे m। उसी नंबर को क्या कह देंगे, m कह देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1, वेयर m यहाँ पे क्या है बताइए, 3q स्क्वायर प्लस 2q, राइट। तो अभी अभी आप देख रहे हो कि जब हम स्क्वायरिंग किए तो हमें एक दूसरा फॉर्म देखने को मिला, और ये कौन सा होल्ड किया बताइए, वही दोनों में से किया ना, यही किया है ना, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ है, यही किया, 3m प्लस 1 किया, तो ठीक है 3m प्लस 1 है। अब हमारे पास एक और चांस है यहाँ पे 2 रख के देखने के लिए। क्या रख के देखने के लिए, 2 रख के देखने के लिए। 3 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि अगर r इक्वल टू 3 होगा तो यहाँ तो r 3 से छोटा है, तो 2 तक वैल्यू रखना है r का। तो अब हम लोग नाउ टाइम इज कम टू पुट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 2। यहाँ देखिए इसको कैसे आप सोल्व करोगे, when r इज इक्वल्स टू 2, तो अब ये अप्लाई कर दो r का वैल्यू 2 इक्वलिट्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट में। तो a इक्वल्स टू 3q एंड प्लस 2, ठीक है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से आ गया, तो a स्क्वायर 3 3 जा 9 q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यहाँ पे आ गया 12q प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 2b है यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा देखिए आप लोग, 9q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 3 एंड प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, लेकिन इसको अभी हम लोग अंदर रखेंगे, ठीक है, सो दैट कि वी इजिली टेक द कॉमन फ्रॉम ऑल द प्लेसेस। तो सभी प्लेस से क्या कॉमन आ रहा है आप लोग गेस कीजिए, इस सभी प्लेस से क्या कॉमन आ रहा है, ऑफ कोर्स 3 ही कॉमन आ रहा है। तो अंदर में क्या बच रहा है, 3q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2ab,
3 4 जा 12 होगा, बाय मिस्टेक यहाँ 16 लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा 12 होगा। यस 12 क्यूब। तो यहाँ पे 4 क्यूब है और 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे बच गया 1 और ये +1 है। अब देखो ये सब क्या है, सब को सॉल्व करने पे एक नंबर ही मिलेगा। अगेन वो नंबर को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3m + 1 और यहाँ बता भी देंगे कि वेयर m is equals to 3q² + 4qm + 1। ठीक है। तो in this question we have observed after putting the value of remainder all the square is only hold either 3m और 3m + 1। जैसे पहला केस में क्या मिला था, पहला केस में मिला हमें 3m, सेकेंड केस में क्या मिला 3m + 1 और थर्ड केस में क्या मिला 3m + 1। सो दिस प्रूव द स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे हो गया। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिएगा। बट सेल्फ ट्राई करने में यहां पर 9 नहीं लेना है, 9 लोगे तो बहुत ज़्यादा स्टेप बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेना रहेगा, एक स्टेप बना देते हैं, हिंट्स दे देते हैं आपको। जैसे बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो a = bq + r where 0 less or equal than r but r is always be less than b। और यहाँ पे लिखोगे टेकिंग या पुटिंग भी लिख सकते हो। टेकिंग b को हमें 3 लेना है। क्यों 3 लेना है, क्योंकि 9 का एक फैक्टर 3 है, दूसरा भी 3 है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, 3 लेंगे। जब b 3 होगा तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ r। अगर हम यहाँ पे इसको 3 रखते हैं, b के जगह पे 3 रखते हैं, तो ये r क्या है 3 से तो छोटा है। तो इसका मतलब कि r जो होगा, एक वैल्यू होगा 0, दूसरा वैल्यू होगा 1 और एक होगा 2। अब इसी तरह से जैसे ही पहला क्वेश्चन बनाया 1 2 3 रखिएगा, क्यूब कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, सब टैली कर जाएगा आपका। ठीक है। नाउ टाइम इज कम टू लुक सम क्वेश्चन फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। 1.2 को अब हम लोग देखेंगे, ये ओवर हो चुका है। अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 1.2। न्यू पेज, ठीक। यस, एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो 1.2 में भी ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन है। देखते हैं, इसको हम लोग कोशिश करते हैं आज इसको फिनिश ही कर देंगे। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एक्सप्रेस ईच। आई हैव एनसीईआरटी बुक्स, तो हम डायरेक्ट बुक में क्वेश्चन देख रहे हैं। और वैसे आपका हम जिनके पास बुक नहीं होगा, फॉर द convenient of those students who have are not available NCERT books, so मेरे स्क्रीन में ऑलरेडी दोनों ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ, आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस ईच
number as the product of its prime factor। तो कोई एक देख लेते हैं, जैसे एक देख लेते हैं फर्स्ट और एक देख लेते हैं 5, तो दोनों को प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? 1 का देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है 140 और प्राइम लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? लिस्ट मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है और ग्रेटेस्ट तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा? 2 7 जा 14। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना, इसको इस तरह से नहीं करना है, इसको कुछ दूसरे तरीके से करना है। तो 2 टाइम्स में कट ही जा रहा है। आप इसको लिखेंगे 140 और 2 से कीजिए, 70 टाइम में कट गया, फिर 2 से कीजिए 35, 3 से तो होगा नहीं, तो डेफिनेटली 5 से होगा। 5 7 जा 30 और 7 के बाद अगर 1 से करना चाहते हो तो कर सकते हो, 7 1 जा 1, यहाँ 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 140 कैन बी फैक्टराइज 2 into 2 into 5 into 7, दिस इज 7, ये 7 था, ठीक है, ओके। तो ये आंसर हो गया आपका। अब हम लोग इसका एक 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5th पार्ट हम लोग देखते हैं। 7429, 7429। अब इसका हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो 7429 आपको, चूंकि लास्ट डिजिट 9 है इसलिए 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। तो फॉर टाइम सेविंग आई डायरेक्टली डिस्कस विथ यू। आपको डिसाइड करना है कि किससे होगा। 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। 7 7 जब 49 वैसे आता, लेकिन 7 से नहीं होगा। तो फिर किससे होगा बताइए? ट्राई कीजिए आप लोग इसमें सोचने के लिए थोड़ा सा। तो ये जो नंबर है ये आपका होने जा रहा है, आई थिंक 17 से शायद ये नंबर डिवाइड होगा। तो 17 हम लोग देख लेते हैं ना, 17 से करके देख लेते हैं कि कैसे ये डिवाइड होता है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, कहीं रफ वर्क कर लेते हैं। 7429, ठीक है। 17 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना बार में जाएगा? 17 से डिवाइड करते हो तो यहीं पे करके देख लो, 7429 17, 75 से कितना होता है? 35 85 हो गया, 74 4 टाइम्स में कीजिए, 7 5 जा 35, 3 in hand, 5 3 8, यस 4 टाइम्स में करेंगे तो 7 4 जा 28, कैरी 2 in hand, 4 1 4 और 2 6। तो यहाँ पे आ रहा है कैरी 1 in hand, तो यहाँ आ रहा है आपका 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा और 2 9 ऐसे ही आ गया। अब तो मेरे ख्याल से कितना टाइम्स में जा सकता है ये जाएगा आपका 9 टाइम्स हो सकेगा। 9 टाइम्स में कितना आता है? 7 9 जा 9 7 63 नहीं, तो ये कितना बार में जा सकता है? अच्छा 7 4 जा 68 ना, 7 4 जा 68, ठीक है। तो 7 3 जा कितना होता है? 51,
51 1 आया, 1 आया, 9 आया, 119 आ रहा है। तो अब 7 बार में इसको करेंगे। 7 7 जा 49, 49, 7 1 जा 7 और 4 11, ये कट गया। तो अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड कितना बार में हो रहा है? 4 3 7। अब 4 3 7 भी क्या है? एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसका लास्ट डिजिट 7 है, इसलिए इवेंस नहीं होगा। जैसे इसमें 9 था, इसलिए ये भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको करके देखते हैं, 19 से करके देखते हैं। ये कलर चेंज कर लो। 19 से करके देखो तो बेटा इसमें क्या है? 19 2 जा क्या होता है? 38। यस, तो यहाँ पे क्या आया? 13 में से 8 गया, 8 5 13 कट गया, 7 आया। 19 3 जा व्हाट? 19 3 जा 9 3 27 के 7 हाथ में 2 3 2 5, पूरा का पूरा कट गया। तो 19 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये अब डिवाइड हो जा रहा है 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, तो 23 से ही डिवाइड होगा। तो देयरफॉर 7 4 2 9 को प्राइम फैक्टराइज करोगे आप, आ रहा है 17 19 एंड 23। दिस बी द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब सेकेंड में 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तीनों एक को अगर सीख लेंगे तो बाकी 2 आप बना सकते हो। तो चलिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में कहता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड करना है फॉर द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 में दिया हुआ है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और उसके बाद एक फॉर्मूला को वेरीफाई भी करना है कि वेदर इट इज वेरीफाइड और नॉट। तो पहले तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि 2 नंबर्स क्या दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन आप देखिए, 2 नंबर्स क्या है? 26 एंड 91। चलिए, तो 26 इसको फैक्टराइज मेथड से हम लोग करते हैं। 26 को कैसे लिख सकते हैं? 26 को 2 से करोगे तो 13 आ रहा है। यस, 2 इंटू 13। अब 91 को अगर हम लोग करते हैं, 91 को करते हैं तो मेरे ख्याल से 3 बार में भी जा सकता है। नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। 7 1 जा 7, 2 और 1 21, 7 3 जा 21। तो ये तो आया बेटा 7 इंटू 13। ठीक है, तो देयरफॉर एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सब में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? तो यहां पे पहले आप लिखिए 26 91, और दोनों में हम देख पा रहे हैं जो कॉमन है यहां तो 13 दिख रहा है। तो यही इसका एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम क्या होगा? व्हाट इज द एलसीएम? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? 26 एंड 91। तो 13 तो इसमें कॉमन था ही, इसमें 2 और इसमें 7, तो दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 2 जा 14, 14 और 13 मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 14 और 13 करके देख लीजिए। 12 की 2 हाथ में रहा, 1 3 1 4, 14 3 जा 42 एंड
एंड 4 एंड 1, तो यहाँ पे 2 8 1 182 आ रहा है। क्या है? 182। अब यहाँ पे ये दोनों तो हम लोग फाइंड कर लिए नंबर, ये एक आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सिंस LCM, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF क्या होगा बताइए। तो HCF है 13 और LCM है 182। मल्टीप्लाई करके देखिए, चेक कीजिए। 182 when multiply by 13 you will get here 3 2 is 6, 8 3 is 24, 2 in hand 3 and 2 5, 2 8 1 6 6 8 5 13 की 3 हाथ मिलाए 1 1 1 2, तो ये आ रहा है 2 3 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या था, 26 था और 91 था। चलिए 26 एंड 91, अब इसको हम लोग को देखना रहेगा। तो 26 एंड 91 मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर लेते हैं। 91 when multiply by 26 you will get here 6, 9 6 are 54, 54 right, 2 18, 6 6 8 5 13 की 3 हाथ में रहा है 1 1 1 2, तो क्या मिला 2 3 6 6। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ LCM into HCF is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या हुआ? वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं, सेकेंड नंबर भी देख चुके हैं। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें कहता है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF फाइंड आउट करना है। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन फॉर अ सैंपल and remaining other question you may able to solve by yourself। तो देखिए 3 नंबर्स में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट। तो सबसे पहले नंबर्स क्या है, 12 15 एंड 21। तो 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप यहां पे चाहें तो देख ही लीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो यहां पे क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को हम लोग कैसे कर सकते हैं, 3 5 जा 15। तो ये 3 इंटू 5 हो रहा है केवल। ठीक है, 3 5 जा 15। एंड 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, 3 से अगर आप करोगे तो 3 7 जा 21। तो यहां पे लिखो 3 इंटू 7। Isn't it? Everybody understand? Okay, very good, very good. No problem, very good. तो अब हम लोग का सबसे पहला जो टारगेट है वो क्या है, पहला क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो यहां लिखेंगे सिंस LCM ऑफ 12 15 21
तो देखिए एलसीएम में क्या आ रहा है, चलिए देख ही लीजिए आप लोग सब। सब में कॉमन 3 है, तो जो सब में कॉमन 3 है 3 लिख दो, और बाकी नंबर को भी मल्टीप्लाई करना, किसी को छोड़ना नहीं। ये 2 2 जा क्या हुआ 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। ये क्या हुआ 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। और ये क्या है 7, तो यहाँ पे 7 आप लिख सकते हैं। देखिए 4 5 जा 20, वेरी गुड, और 3 7 जा 21, मल्टीप्लाई कीजिए 4, तो ये आपका आ रहा है 420। ठीक है, एक बार चेक, लेट मी चेक वंस अगेन। 3 7 जा 21 20, तो 2 2 2 जा 4 is 0, राइट। तो ये एक पार्ट आ गया। अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF देखेंगे। HCF ऑफ 12 15 एंड 21 इज इक्वल टू, इसमें तीनों में कॉमन क्या, तीनों में सबसे ज्यादा, तीनों में एक ही चीज कॉमन है 3 है, तो ये HCF हो गया 3 हो गया। तो यही आंसर हो गया आपका, HCF और LCM निकालना था। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ ओवर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब एक न्यू पेज लेना होगा मेरे को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से गिवन दैट HCF दिया हुआ है, तो LCM हम लोग को फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, सिंस 2 नंबर्स क्या है, पहला नंबर है 306 और दूसरा नंबर क्या है 657। ठीक है, ओके 657 है। तो अभी इसको देखिए कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। यहां पे हमें लिखना रहेगा एक फॉर्मूला कि सिंस HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers. Now apply the value. HCF ऑलरेडी इज गिवन है। HCF कितना दे रखा है, तो इसको देखिए HCF है 9। HCF हाउ मच HCF इज गिवन हियर 9, तो यहां लिख दीजिए 9। LCM तो पता ही नहीं है, तो जो नहीं पता है उसको एज इट इज रखेंगे। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या है 2 नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये तो इसी का प्रोडक्ट हमें लेना रहेगा। तो लिखेंगे 306 इंटू 657 और LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 एंड होल डिवाइडेड बाई 9। तो 9 से अगर हम इसको कट करें तो मेरे को लगता है ये हो जाएगा शायद 657 अगर हम करते हैं 9 से, लेट मी चेक, तो 9 7 जा 63, राइट, 27 9 3 जा 27, ये कट गया आपका 73 टाइम्स में। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस, देन वी गेट द आंसर। अभी आप देख सकते हो कैसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, लेट मी चेक। 306 when multiplied by 73, 306 when multiplied by 73, you will get here 6 3s are 18 and 3 3s are 9, that's 9, 7 6s are 42 and 7 3s are 21, 8 3 and 9 plus 4 13 2 2, so 2 2 3 8 be the answer। तो 5 भी बन गया। हमें कितना आसानी से हम लोग LCM फाइंड आउट कर लिए।
अब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस कॉन्सेप्ट बेस में क्या है, ओनली 3 क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, इसको हम अभी क्लियर कर दिए देते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा, क्योंकि आप लोग मैथमेटिशियन हैं, तो मैथ वाले बच्चे तो थोड़ा, all the mathematicians doing the perpetual work to finishing the questions। अब ये थोड़ा सा बच गया तो इसको हम लोग देखते हैं। हमें चेक करना है कि whether 6/n क्या इसका जो यूनिट डिजिट होगा एंड विद द डिजिट 0 होगा कि नहीं। और n क्या है, n विद एनी नेचुरल नंबर। n मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो n इज अ नेचुरल नंबर इज गिवन हियर। तो लेट अस डिस्कस। यस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है कि सिंस एनी नंबर एंड विथ digit 0 when the number r, तो मान लो कि कोई नंबर है, ठीक है, वो 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। 2/n और 5/m का फैक्टर होना चाहिए। अब n एंड m क्या है, n और m कोई भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे n और m क्या है, नेचुरल नंबर है। सपोज कीजिए कि कोई सा भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 है, लेट मी सी, जैसे 20 है, तो 20 में यूनिट डिजिट क्या है, 0 है ना। तो ये किसे किसे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है या 5 से हो सकता है, या दोनों के प्रोडक्ट्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 5 के अलावा कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। 2 और 5 के अलावा नंबर नहीं रहे। यहाँ n और m से कोई घबराने की जरूरत नहीं। n हो सकता है 1, m हो सकता है भी 1 या 2, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो जो भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, दैट इज ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2 और 5 और बोथ। इजंट इट? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, या तो वो 2 से डिवाइड होगा, या 5 से होगा, या फिर दोनों से होगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर है, नंबर के जगह पर आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ, और 6 का पावर क्या है, n है। तो ये इस फॉर्म को बिलोंग्स कर रहा है। इसमें फैक्टर है क्या, 6 में 2 और 5 है क्या, 6 है, 2 और 3 है, लेकिन 5 तो नहीं है। तो इसका मतलब कि ये नॉट बिलोंग्स। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर 6/n कैंट मतलब कैन नॉट हैव, क्या लिख दें, एंड विद डिजिट, कैन नॉट हैव, यूनिट लिख दो, यूनिट डिजिट 0। आंसर हो गया ये, दिस इज द आंसर। तो कितना सक्सेसफुली बेटा हम लोग देखें, 5 तक देखें। अब केवल 2 क्वेश्चन बच रहा। देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये भी काफी आसान है। तो चलिए थोड़ा सा मेरे को पेशेंस के साथ में हेल्प कीजिए। हम आपका ये एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज आज हम फिनिश्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड।
हम इसको अभी फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में कहता है कि आपको कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है और इसको बोलता है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर क्यों होगा। तो कंपोजिट नंबर कैसे होता है, जैसे मान लो 14 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और इटसेल्फ अपने नंबर से डिविजिबल। तो एक से ज्यादा फैक्टरों से डिविजिबल है ना, अदर देन 1 छोड़ करके एक से ज्यादा नंबर से डिविजिबल है ना, तो इसलिए ये कंपोजिट है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 11 है या 13 ही ले लो, मान लो 13 है या 11 भी ले सकते थे, तो इसका एक फैक्टर 1 हो सकता है और दूसरा इटसेल्फ ही हो सकता है। तो यानी एक ही अपने आप से ही डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जब एक से ज्यादा नंबरों से जब डिविजिबल होता है जो नंबर, उसको हम लोग कंपोजिट, यहाँ एक से ज्यादा 1 2 3 नंबर से डिविजिबल, इसलिए दिस इज कंपोजिट। तो ये तो आप पहले जानते ही हैं, हम पहला ही अपना इंट्रोडक्टरी वीडियोस में ही बताए थे ये सब नंबर फैमिली के बारे में। तो यहाँ पे देखिए नंबर क्या दे रखा है, 7, लेट मी चेंज द कलर, 7 into 11 into 13 plus 13 एंड यहाँ पे देखिए 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and plus 5। ये 2 को थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे यहां पे पहला जो दिया हुआ है इसमें 13 है और यहां भी 13 है। ठीक है, और सेकंड में क्या है, यहां पर 5 है, 5 थोड़ा क्लियर लिख दे, 5 है यहां और यहां पे भी 5 है, कॉमन है। तो यहाँ पे 5 एंड हेयर इज ऑल्सो 5 कॉमन है। तो कॉमन को लीजिए, कॉमन को कॉमन ही ले लीजिए। तो दिस नंबर कैन बी रिटेन एज, आफ्टर टेकिंग 13 एज ए कॉमन, तो हेयर 7 into 11 और प्लस 1 बचा। ठीक है, एंड यहां से 5 कॉमन ले लो, तो क्या हो रहा है, 7 into 6 into 4 into 3 into 2, 1 तो कोई लिखता नहीं है, आप भी मत लिखिए, और यहां पे 1। नेक्स्ट 13, 11 into 7, 77 plus 1, 78 आ रहा है यहाँ, एंड यहाँ पे 5 है इंटू, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 6 42, ठीक है, 6 7 42, 4 3 12, 12 दूना 24, इतना से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10 की 0 हाथ में रहा, 1 8 1 9 और 1 10 और प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 1009 आ जा रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 78 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 78 को 13 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, सो 8 3 24 कैरी 2 इन हैंड, 7 3 21 एंड 2, 23 8 एंड 7, 4 8 और 3 कितना होता है, 11, 7 3 10, तो ये आया आपका 1014 एंड ये कितना आएगा बताइए,
9 पचे 45, 4505 और बाकी अनयूज्ड नंबर को यहाँ से डिलीट मार देते हैं। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये जो नंबर है, आप देख सकते हैं ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये कई नंबरों से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो यही दिख रहा है कि ये 13 से भी डिवाइड है, 78 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, और ये भी क्या यहाँ 5 से डिवाइड है, 1009 से डिवाइड है। तो इसका एक से ज्यादा फैक्टर है, तो दोनों ही नंबर क्या हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, सिंस 1014 and 5045 have many factors। तो जब many factors होगा, जैसे यहाँ पे 20 कितना कितना से डिवाइड है, 2 से, 5 से, 4 से, 10 से, अगेन 20 से, कई फैक्टर इसका आ रहा है। तो ये क्या है, कंपोजिट है, जिसका बहुत ज्यादा फैक्टर हो कंपोजिट होगा। तो ये भी कंपोजिट हो गया, ये भी कंपोजिट हो गया, और ये बना था किससे, तो देयरफॉर 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4, ओहो कहाँ चला गया, नो 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 नो, यस, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये composite number हो गया। And let us see the last question of this exercise। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू लुक योर पेशेंस। अब इसका हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 7 नंबर। व्हाट से द स्टेटमेंट, इसमें कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलिए एक सर्कुलर पाथ है, या इसको और भी अच्छा से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यस, नो, ये कैसे बना, ये तो नहीं हुआ, इसको सर्कल बनाना था ना, नहीं, अच्छा, सर्कल का ऑप्शन, यस, ठीक, एक सर्कल। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ये अंदर में फील्ड है, ठीक है, ये अंदर में क्या है, फील्ड है। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो ये सर्कुलर पाथ है और इसके अंदर में फील्ड है। तो बोलता है कि सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से सोनिया चलना शुरू करती है और फिर से वापस यहां पे पहुंच जाती है। तो सोनिया टेक्स हाउ मच, सोनिया टेक्स 80 मिनट, वाइल एक राउंड लगाने में रवि भी यहीं से दौड़ना शुरू करता है, और रवि को 1 राउंड लगाने में कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। तो बोलता है कि दोनों अगर एक साथ दौड़ना शुरू करता है एट द सेम पॉइंट, तो आपको बताना कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कम से कम कितना समय लगेगा, कितना मिनट लगेगा कि सेम पॉइंट पे ये लोग फिर मिले। जैसे
इनको दौड़ने में 18 मिनट लग रहा है, इनको दौड़ने में 12 मिनट लग रहा है, तो क्या कोई ऐसा पोजीशन हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को मिलते हुए फिर क्रॉस कर जाए? तो इसको हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है? कम से कम पूछ रहा है, लीस्ट कितना सेकंड लग सकता है। तो देखिए, पहले तो इसको लिखिए सिंस 18 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 3, while 12 can be factorized as 2 into 2 into 3। ठीक है, तो 2 6 3 6, यस। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और एक 3 यहाँ, एक 2 यहाँ है। तो हम लोग इसको फाइंड करेंगे। देयरफॉर LCM ऑफ 18 and 12 इज इक्वल टू, इसको एक बार लिखिए, प्लस इसको लिखिए, 3 को लिखिए, और ये वाली 3 को लिखिए, फिर ये वाली 2 को लिखिए। तो कितना आ रहा है? 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 मिनट। सो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। सो इस तरह से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन आज 2 एक्सरसाइज का देख रखा है। आई होप सो आप इसको आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इंजॉय करेंगे, एंड 2 और इसमें सेशन चलेगा। इसका 2 एक्सरसाइज बच गया, उसको कंप्लीट कर देंगे, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द बोर्ड लेवल वो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो होते हैं उसमें 2 या 3 चल सकता है। सो गुड नाइट स्टूडेंट्स, थैंक यू very much to attending this videos on my channel. Thank you very much.